Yes. So here the chapter, as I gave you the overview of the chapter yesterday. So today we'll start with it. Discovering Tut, the saga continues. Written by A.R. Williams. Yes. Students, tell me what is saga? I told you yesterday, saga means a long story about an event over a period of many years. So, as the title suggests, this is a long story about Tut. Who was Tut? Tut was the king of or the pharaoh of Egypt, right? So, this is all about Tut, and his full name was Tutankhamun, right? So, the chapter describes the boy king Tut, whose full name was Tutankhamun, and he was the last heir. Heir means successor of a very powerful royal family that ruled Egypt for centuries. इजिप्ट में बहुत सेंचुरीज तक काफी सालों तक उन्होंने राज्य किया है, राइट, एंड ही वाज द लास्ट वन ऑफ दैट डायनेस्टी. डायनेस्टी मीन्स वंश. उस वंश का वो अंतिम उत्तराधिकारी था, राइट. सो द लेसन ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ सिटी स्कैन of Tut's mummy revealed interesting but startling facts about him. Right? Why the name has been given Discovering Tut? Just because of it. Because he died very young, and that was the mystery to know why did he die and how did he die. So the chapter elaborates all those facts, right? How he was x-rayed, how his body was city scanned, and that mummy was the first one whose city scan was done in 2005, right? So let's start with it. First, notice these expression, please, and mark them out. Use your pencil or pen. Today I am giving you because you have said that you didn't mark. You forgot, right? But next time it should not be done. You will mark by your own, read the chapter, read 2 3 pages, mark the difficult words and meanings, so that the chapter must be clear when it will be explained in the class, right? So prior reading is important, beta. So, forensic reconstruction. What does this mean? Forensic reconstruction means connected with the scientific test to solve a crime or a mystery. Right? It is connected with the scientific test. CID आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ फोरेंसिक लैब्स होती हैं जहाँ पर ये सब एक्सपेरिमेंट्स करके किसी क्राइम को जाना जाता है, व्हाई इट हैपेंड, right? So all these forensic reconstructions were done on Tut's mummy over here in this chapter, right? Then scudded across. Scudded across means moved quickly. बहुत जल्दी से घूमती हैं, पिक्सेल्स बनती हैं. जब आप CT scan, if somebody had undergone it, then machine revolves quickly, right? And the pixels have been made so that we can know, we can get the picture of our organs, right? So this is studied across, moved quickly, and here in this chapter it will go with the winds. हवाओं के साथ आएगा ये. स्टडीड अक्रॉस, बहुत तेजी से हवाएं चल रही थी. Cascade gray. Cascade gray, here cascade stands for sky. Gray color, right? When the sky became gray. Okay? Resurrection. Resurrection means a new beginning of something old. A new beginning of something old, which can be taken up as the synonyms revival or rebirth. Okay? Then funerary treasures. Funerary treasures means related to funeral. What is funeral? When somebody dies, then we do, certain kinds of rituals. अंत्येष्टि हिंदी में कहते हैं बेटा, ठीक है. So funerals.
circumvented. Circumvented means avoided. All right. Then computed tomography. Computed tomography, as I told you yesterday, it is the full form of CT scan, right? Then airy detail. Airy detail means strange and frightening details. डरा देने वाली, right? हैरान कर देने वाली details. So let's start now. Here is the picture of Tut or Tutankhamun, right? So here we go. He was just a teenager. He stands for Tutankhamun. So Tutankhamun was just a teenager when he died. He was just in the age between 13 or 14 when he died, and he was the last heir. Heir means successor. हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी. He was the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. कई सालों से, centuries से, शताब्दियों से वो राज्य करते आ रहे थे, and he was the last successor of this Egyptian family. He was laid to rest, laden with gold, and eventually forgotten, as he was king. And at that time there was a lot of gold. So he was laden. उसको टोम में बहुत सारे गोल्ड के साथ लिटाया गया, मतलब when he died, right? And after some times everybody forgot about him, right? Since the discovery of his tomb in 1922, please underline it. When was his tomb discovered? In 1922. The modern world has speculated. Speculated means calculated. So सारा modern world, जब उसकी tomb को कब निकाला गया, उसको tomb में से 1922 में, right? So then everybody was calculating about what had happened to him. सभी calculations कर रहे थे क्या हुआ होगा उस राजा के साथ, right? With murder being the most extreme possibility, and it was in the minds of all that might be it was a murder because he was the powerful one. So there was a chance that somebody was the rival of him and he murdered him, right? So everybody was in the curiosity to know why did he die and how did he die. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, देखिए 1922 में उसकी बॉडी को निकाला गया और आज मतलब उस समय पर 80 इयर्स तक उसकी टूम में से उसको निकाले हुए काफी समय हो गया था. एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 इयर्स टट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन. 80 सालों में ये पहली बार हुआ कि टट की बॉडी पर सिटी स्कैन किया गया दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिसने उसकी लाइफ और डेथ के बारे में डिफरेंट क्लूज दिए, right? And provides precise data for an accurate forensic reconstruction. और उसने बहुत scientific जो है डाटा शो किए about this boyish pharaoh. pharaoh मैंने कल भी बताया था बेटा, the king, a ruler of ancient Egypt. ancient Egypt के जो rulers होते हैं उन्हें pharaoh कहा जाता है, राइट? सो इस बॉयश फरो के लिए ये बहुत सारे साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शंस हुए, सिटी स्कैन हुआ उसकी बॉडी पर, एंड द मिस्ट्री केम इनटू विजन, राइट? सो आई बिलीव इट्स क्लियर टू यू. नाउ लेट्स स्टार्ट, continue with it. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place. तो बहुत जोर से बेटा आंधी, एन एंग्री विंड स्टार्ड अप. अभी बताया था ना स्टार्ड, बहुत तेजी से स्टारिंग होती है जब आप मिक्सी में कुछ ग्राइंड करते हैं तो स्टारिंग होती है, घूमती है बहुत तेजी से. सो अब बहुत तेजी से एंग्री विंड घूम रही थी. घॉस्टली डस्ट डेविल्स, डस्ट भी डेविल की शेप लिए हुए थी, फैंटास्टिक शेप्स में घूम रही थी, राइट? क्यों घूम रही थी? नेचर जब हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं तो नेचर टेक्स द रिवेंज. एज दीज डेज इट इज हैपनिंग. we were destroying the nature by cutting down the trees or making pollution. So these days nature has taken the revenge. We have been locked down for 3 months,
right? And now see, when we make certain bad things, so nature also becomes unhappy, right? At this time when his tomb was discovered and he was taken out from his tomb, so angry winds started moving, taking a lot of shapes, right? And the inch so from his resting place in the ancient Egyptian symmetry क्या होती है बेटा? Symmetry, everything has a symmetry, right? टेबल है उसकी भी एक symmetry है. So same way, symmetry here stands for a place when the dead bodies where the dead bodies are kept, right? जैसे मॉक ये आप लोगों के फ्यूनरल प्लेसेस हम सबके रहते हैं, राइट? सो ग्रेवयार्ड, ठीक है, इट वाज अ ग्रेवयार्ड नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स. दिल्ली अगर आप गए हो, राजघाट है, शक्ति स्थल है, और ये सब है. क्यों? जब हम रेप्यूटेड पर्सन होते हैं उन्हें फ्यूनरल करते हैं तो उनका एक रेस्टिंग प्लेस बना दिया जाता है जहां हम हर साल उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं. सेम वे ही वाज द किंग. सो जहां किंग्स को दफनाया जाता था उसे कहा जाता है वैली ऑफ किंग्स इन इजिप्ट, राइट? सो अब यहाँ उसको क्या किया गया, उस वैली ऑफ किंग्स में से बाहर निकाला गया. अब जब उसे उसकी सिमेट्री से बाहर निकाला गया तो नेचर एकदम से बहुत गुस्से में आ गई और बहुत तेजी से विंड्स चलने शुरू हो गई. दैट मीन्स सो, राइट? डार्क बेली, बेलीड मीन्स क्या होता है? स्टमक. और डार्क बेलीड मीन्स जो बहुत बड़े स्टमक से मतलब भरा हुआ, मतलब फिल्ड. इट इज टेकन अप फॉर फिल्ड नाउ. डार्क बेलीड क्राउड्स, बहुत ज्यादा काले काले बादल जो थे, हैड स्कडिड अक्रॉस, दे वर मूविंग क्विकली इन द डेजर्ट स्काई. पूरे डेजर्ट स्काई में पूरा दिन, ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग, पूरा दिन रात घूम रहे थे. एंड वेलिंग, वेल क्या होता है बेटा? कवरिंग. हिंदी में इसे घूंघट कहते हैं, ठीक है? तो कवरिंग किए हुए किसको? द स्टार्स. रात को स्टार्स को भी कवर किए हुए थे. इन कास्केट ग्रे, कास्केट ग्रे मीन्स ग्रे स्काई, राइट? सो पूरी रात दिन जो है जबरदस्त तरीके से ब्लैक कलर के क्लाउड्स घूम रहे थे जो स्टार्स को भी कवर किए हुए थे, राइट? और दिन में सन को भी कवर किए हुए थे, राइट? सो इट वाज 6 p.m. on 5th January 2005. अंडरलाइन इट कि कौन सा डे था? इट वाज 6 p.m. 6 बज गए थे रात के, शाम के. एंड द डे वाज 5th January 2005. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट. कब? ये डे कौन सा डे किस चीज को शो करता है? कि जब इस वर्ल्ड की फेमस जो मम्मी थी, फर्स्ट मम्मी थी, जिसके ऊपर क्या हुआ? सिटी स्कैन किया गया, राइट? ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज. जो लोगों के माइंड में मेडिकल मिस्ट्रीज लिंगरिंग घूम रही थी ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर. इस यंग रूलर के बारे में who died more than 3000 years ago. देख रहे हैं आप कितने साल पहले? 2005 से भी 3300 ईयर्स पहले वो मर चुका था, राइट? और आज उसकी बॉडी पर सिटी स्कैन किया जा रहा था 2005 में, और अब आप 2020 में हैं. सोच के देखिए, 15 साल पहले. ओके, द फर्स्ट मम्मी ऑन विच द सिटी स्कैन वाज डन, दैट वाज ऑफ टट. ओके, so all afternoon the usual line of tourists. So here we had come to know about when the Tut's body was CT scanned, and now we'll come to know how the body was taken out from the tomb, right? And what were the things done with him. Done with him नहीं कह सकते, with it कहेंगे, because now it is non-living. लिविंग बींग्स के साथ हम हिम यूज करते हैं. ओके, विद इट्स बॉडी नाउ. ओके, सो ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड. डिसेंडेड मीन्स मूव्ड डाउन. सो पूरा दोपहर जो है यूजुअल लाइन, पूरी क्राउडेड लाइन चल रही थी टूरिस्ट की. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैड कम ओवर हियर, दे हैड मूव्ड डाउन इनटू द क्रैम्ड. किसमें? क्रैम्ड मीन्स हियर क्राउडेड, ठीक है? झुकी हुई, ऐसे मुड़ी हुई सी, मतलब नीचे डाउन.
ओके, रॉक कट टूम, रॉक को काट कर जो उसकी टूम बनाई गई थी, बड़ी सी रॉक को काट कर, ठीक है, एक कब्र बनाई गई थी, उसमें नीचे कहा, कितने फीट नीचे, 26 फीट अंडरग्राउंड। देख रहे हैं आप, कब्र बहुत नीचे अंदर दफनाया जाता है उसको ड्रिल करके। सो 26 फीट अंडरग्राउंड उसकी टूम मिली थी, और उसे देखने के लिए लोग जो है टूरिस्ट पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आ रहे थे, राइट, टू पे देयर रिस्पेक्ट। और किस लिए? क्योंकि जैसे ही सबको पता चला दैट टट्स मम्मी वाज डिस्कवर्ड, सो एवरीवन केम ओवर हियर टू पे ट्रिब्यूट, टू पे रिस्पेक्ट टू इट, right? They gazed all the murals. What is this murals? Murals, yesterday I told you, these are the paintings done on walls. I told you the mosque and the temples, these days we paste up tiles, but earlier there were murals. Sculptors used to do, make some paintings on the walls by their own hands, right? So एज ही वॉज किंग, सो उसका पूरा एक चैम्बर बना हुआ था अंडरग्राउंड, जो 26 फीट अंडरग्राउंड उसकी ग्रेवयार्ड थी, उसमें भी एक बहुत सुंदर चैम्बर बनाया गया था, जिसमें स्कल्पटर्स ने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी, राइट? So everybody was anxious to see them. The walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. और सभी उसके फेस को, चमकते हुए फेस को देखना चाहते थे। किसके फेस को? टट के फेस को। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। और उससे भी ज्यादा सबको किस चीज की क्यूरियोसिटी थी? मम्मी का जो, मम्मी शेप में जो आउटर कॉफिन लिड बना हुआ था। लिड, लिड माने कवरिंग, ढक्कन, ठीक है, कॉफिन का जो ढक्कन था उसे देखने के लिए सबको क्यूरियोसिटी थी। क्यों? क्योंकि वो बनाई इतनी सुंदर शेप में, उसके ऊपर भी मुराल्स, उसके ऊपर भी पेंटिंग्स हैं, और साथ ही साथ इट वाज मेड बाय गोल्ड। किंग था भाई, और बहुत उस समय तो वेल्थी हुआ करते किंग, और गोल्ड भी बहुत था, राइट? सो एवरीथिंग वाज मेड अप ऑफ गोल्ड। Okay, so everybody was anxious to see that lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper. कुछ जो है गाइड बुक्स में से पढ़ रहे थे, धीरे धीरे आपस में फुसफुसा रहे थे, विस्परिंग कर रहे थे। Others stood silently. कुछ शांति से खड़े हुए थे, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. शायद क्या कर रहे थे? पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग डीपली, बड़े सोच रहे थे ध्यान से कि क्यों वो जो है टट इतनी जल्दी मरा, राइट? और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फॉरेस्ट कर्स, और कुछ जो है शिवरिंग कर रहे थे, ट्रैम्बलिंग विद फियर, देवर बहुत कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे? उन्हें डर था कि कहीं कर्स ना मिल जाए, हमें श्राप ना मिल जाए। किसका श्राप? डेथ। किसका श्राप? तट का, क्योंकि उसको रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला गया है। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हैं, राइट? और उन्हें ये डर था कि कहीं डेथ या मिसफॉर्च्यून हम लोगों पर ना आ जाए, दुर्भाग्य ना हो जाए हमारा। वो डिस्टर्ब देम, क्योंकि ये सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं? उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके रेस्टिंग प्लेस से। एंड दैट वाज रियली ट्रू, राइट? सो नाउ हियर वी केम टू नो दैट हाउ हिज tomb was discovered. Now see, the mummy is in very bad condition because of what Carter, underline it, because of what Carter did in 1920s. Howard Carter, you will come to know about it also in next paragraph also, right? Or in this paragraph. Yes, of course, in this paragraph. Howard Carter was the one who took out that mummy, who found that mummy. He was the archaeologist who took out and found out that mummy first in 1920s, right? So the mummy is in very bad condition. What does this mean? It is in quote marks. It means these are the same. और जब किसी की sayings होती है वो as it is रहती हैं, इसलिए यहाँ is use हुआ है, otherwise everything was in past, right?
सो मम्मी बहुत बुरी बैड कंडीशन में थी है बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, सेट जाही हवास. जाही हवास कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज. सो एंटीक चीजों को कलेक्ट करने वाला एक काउंसिल रहता है, राइट. और उसका सेक्रेटरी जनरल है. सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? जाही हवास. So when he saw that mummy, so he said the mummy is in very bad condition because Carter had done a lot of, um, experiments or you can say bad things with this mummy. और वो क्या bad things रही हैं वो भी हमें clear हो जाएंगी, right? As he leaned means when he was looking down, झुका हुआ सा, जैसे lean कहते हैं ना, lean and thin, दुबला पतला सा. So यहाँ है when he was bending down over the body for a long first look. जब उसने झुककर पहली बार उसको बॉडी को देखा, Carter, Howard Carter, the full name has been given. Howard Carter, underline it, that is, was the British archaeologist. वो British archaeologist था who in 1922 discovered Tut's tomb. 20 से लेकर 22 थोड़ा थोड़ा मिलता रहा और उसके बाद वो वहीं उसको ढूंढता रहा टूम को, राइट. जैसा मैंने कल बताया था आपको कि बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होती रहती हैं अर्थ में भी, राइट. समटाइम्स देयर आर अर्थक्वेक्स एंड ऑल. सो थोड़ा बहुत मूवमेंट के साथ हमारी चीजें इधर उधर होती रहती हैं. सो जहां वो प्लेस था उसके आसपास ही मगर मिलेगा. ओके. तो अब वो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये दे आर इन हैबिट ऑफ सर्चिंग आउट द मिस्ट्रीज, राइट. जैसे मोहनजोदारो का मैंने आपको एग्जांपल दिया था. सो द बरेल्स और द थिंग्स हैव बीन फाउंड इन झज्जर. तो वहाँ के एरियाज में उनको ढूंढने की कोशिश की गई, उसको खोद खोद कर, राइट. मिट्टी को खोदते हैं ये लोग. सो now here in 1922 he also found this Tut's tomb after years of futile searching. Futile means vain, व्यर्थ की, राइट. बहुत बेकार सी, कई बार ऐसे लगता था उसको कि मैं खुदवा रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसको कुछ नहीं मिल पाता था. लेकिन अल्टीमेटली इन 1922 he got that Tut's tomb, right. And who in 1922 that discovered Tut's tomb after years of futile searching. कई सालों से बेकार में मेहनत कर रहा था लेकिन ultimately he got it in 1922. Its contents, though hastily ransacked, sack means bori, covering, right. So ransacked in antiquity were surprisingly complete. और वो बहुत हैरान हुआ था कि जैसे उसने मतलब एक सब चीजों को निकाला कि दैट वाज कंप्लीट. क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि इतने सालों बाद, कितने हजारों साल बाद, और मम्मी जो है वो एकदम सही अवस्था में मिले, इन करेक्ट पोजीशन मिले, एंड दैट वाज फाउंड. So he was very happy. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. They remain the richest royal collection. अब वो royal collection हो गए थे जो जितना भी सामान वहां मिला था, ever found and have become part of the Pharaoh's legend. और ये उसका legend बन गया था, right? History बन गई थी. Okay. Stunning artifacts in gold. हैरान करने वाले आर्टिफैक्ट्स थे गोल्ड में. Their eternal brilliance meant to guarantee resurrection. और ये सब चीजें जो थी, जो उसे मिल रही थी उस मम्मी के साथ में, so they were a way of getting a resurrection, means a new beginning of something gold. जब हमें कोई पुरानी चीज मिलेगी तभी तो हमें उसकी हिस्ट्री या उसके लेजेंड के बारे में पता चलेगा, isn't it? So they were very happy to get that. Caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention, right? So it has become the sensation at the time of discovery. जो जो चीजें मिल रही थी all were made up of gold. ठीक है.
सो वो सारी चीजें जैसे जैसे उनको मिलती जा रही थी, तो इट वाज गिविंग अ सेंसेशन, एक फीलिंग दे रहे थे उनको, फ्लो दे रहे थे माइंड में, क्यूरियोसिटी हो रही थी, दैट एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और वही उनके अटेंशन का भी सबसे ज्यादा केंद्र था. बट दैट वाज आल्सो बuried विद एवरीडे थिंग्स. देखिए कैसे टूम निकला उसमें से. फिर he was very happy to see कि everything was in correct position. His mummy was not destroyed, right? Because chemicals में उसको डिसॉल्व किया जाता है, तो बहुत अच्छे से उसको प्रोक्योर करते हैं ये लोग. ठीक है, तो मम्मी बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में थी. और उसके साथ साथ देयर वर अदर थिंग्स आल्सो which can tell, which can give the scientific study, and it can be helpful in getting all the reasons, all the that kind of period, to know that period. ओके, उस टाइम को वो अच्छी तरीके से इन चीजों के थ्रू जान सकते थे, राइट? सो व्हाट वर देयर, दैट वाज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स. सिर्फ उसकी मम्मी ही नहीं थी, उसके साथ साथ वहां पर और सामान भी था. क्या था? कि उसका एवरीडे थिंग्स जो वो रोज यूज करता था, he had gone to the afterlife, in the afterlife. As I told you yesterday also, please mark it. Egyptian people believe in afterlife, life after life. ठीक है, मरने के बाद भी उन्हें ये रहता है कि देर इज सम लाइफ आफ्टर इट. इसलिए हो सकता है उसको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए. तो दैट्स वाई बोर्ड गेम्स, जो वो बोर्ड के चेस गेम्स खेलता था, वो सभी. अ ब्रॉन्ज रेजर, शेव करता था तो ब्रॉन्ज रेजर भी था. लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. सी, खाने का सामान भी, वाइन भी, और साथ ही साथ अंडरगारमेंट, सब कुछ उसका एक जो कॉफिन था उसमें पैकअप किया गया था. एज आई टोल्ड यू yesterday, there were 3 coffins. In one coffin there was his dead body, or you can say the mummy was kept, and in the other one all the kinds of undergarments and his daily needs things were kept. And in the third one you will come to know what were offered to him, the flowers of that time, the garlands of that time, those were also saved, right? Okay,